اور سیاست کی نگری میں بھی ہوگی تاک جھاک. گھر سجانے اور سمارٹ نظر آنے کے ٹپس بھی. مجھ سے ملیے پیر ترجمہ گڈ مارننگ ٹوڈے میں ہر صبح 9 بجے. دیکھیے گڈ مارننگ ٹوڈے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے ساتھ ہر پیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ہیرا جاوید. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو اہم خبر دیں. آزاد جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول سے بھارتی فوج کی فائرنگ اور گولہ باری میں ایک کمسن بچی جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے. تحصیل حجیرہ میں بٹال سیکٹر میں بھارتی فورسز نے لگاتار دوسرے دن بھی شدید گولہ باری کی جس سے نہ صرف جانی بلکہ املاک کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے. بھارتی فورسز کی گولہ باری سے گاؤں درہ شیر خان کے ایک مقام کے رہائشی 80 سالہ موتیان بی بی اور ان کا پوتا 17 سالہ اقرار الحق اور 11 سالہ اقرا زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق موتیان بی بی اور اقرار الحق کو روالا کوٹ میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ اقرا کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث انہیں راولپنڈی کے ایک ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ اقرا ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئی جبکہ 2 دیگر متاثرہ افراد کی حالت بھی بہتر بتائی گئی. پاک فوج کی جوابی کارروائی سے دشمن کا بھاری نقصان بھی ہوا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر ہے کہ تحصیل بحیرہ میں یہ خبر آیا ہے کہ بٹال سیکٹر میں بھارتی فورسز نے لگاتار دوسرے دن بھی شدید گولہ باری کی جس سے نہ صرف جانی بلکہ املاک کو بھی نقصان پہنچا. بھارتی فورسز کی گولہ باری سے گاؤں درہ شیر خان کے ایک مکان کے رہائشی 80 سالہ موتیاں بی بی اور ان کا پوتا 17 سالہ اقرار الحق اور 11 سالہ اقرا زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق موتیان بی بی اور اقرار الحق کو راولا کوٹ میں اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ اقرا کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث انہیں راولپنڈی کے ایک اسپتال میں پہنچا دیا گیا ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ اقرا اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئی جبکہ 2 دیگر متاثرہ افراد کی حالت بھی بہتر بتائی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ دوحہ میں پاک افغان امن مذاکرات وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی. خطاب میں کہا افغان مسئلے کا حل طاقت کے ذریعے ممکن نہیں. پاکستان نے افغان امن عمل میں اپنا مصالحانہ کردار ادا کیا اور کرتا رہے گا. قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغان امن مذاکرات کا آغاز ہو گیا جس میں افغانستان میں امن عمل میں پیش رفت پر غور کیا گیا. پاکستان کی طرف سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو عام خبر سے متعلق کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغان عمل مذاکرات کا آغاز ہو گیا جس میں افغانستان میں امن عمل میں پیش رفت پر غور کیا گیا. پاکستان کی طرف سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغان مسئلے کا حل طاقت کے ذریعے ممکن نہیں. احتساب عدالت لاہور نے سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ سمیت 10 ملزمان کو مقدمے میں بری کر دیا. احتساب عدالت لاہور میں ایل ڈی اے سٹی کرپشن کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے سابق ڈائریکٹر جنرل اور ڈیولپمنٹ اتھارٹی احد چیمہ سمیت 10 ملزمان کو مقدمے میں بری کر دیا. عدالت نے احد چیمہ سمیت 10 ملزمان کے خلاف نیب انویسٹیگیشن بند کرنے کی درخواست کو منظور کیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں احد چیمہ کو بری کر دیا گیا ہے. احتساب عدالت لاہور نے سابق ڈی جی ایل ٹی احد چیمہ سمیت 10 ملزمان کو مقدمے میں بری کر دیا ہے. احتساب عدالت لاہور میں ایل ڈی اے سٹی کرپشن کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے سابق ڈائریکٹر جنرل لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی احد چیمہ سمیت 10 ملزمان کو مقدمے میں بری کر دیا ہے. عدالت نے احد چیمہ سمیت 10 ملزمان کے خلاف نیب انویسٹیگیشن بند کرنے کی درخواست کو بھی منظور کیا ہے. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں 2 سال کے دوران حکومتی اخراجات میں 5,000 ارب روپے کی بچت کی. کرونا کی وجہ سے برآمد کا شعبہ متاثر ہوا ہے. کہا حکومت نے اپنے اخراجات میں کمی کر کے فری ٹیکس بجٹ دیا اور پاک فوج کے بجٹ میں بھی اضافہ نہیں کیا گیا. 1,60,00,000 پاکستانیوں کو کیش دیا اور اس انداز میں دیا کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ ایک شفاف طریقے سے دیا جا رہا ہے اور اس کا اچھا اثر ہوا. اور ہم نے
लिक्विडिटी और कैश और सस्ते लोन्स अपनी बिजनेसेस को दिए। आपने देखा कि अगर आपके प्रिंसिपल कर्ज अगर ड्यू है तो उसको 1 साल तक पीछे किया। बिजनेसेस के 3 महीने के बिजली के बिल हुकूमत ने अपनी जेब से भरे। अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को बरकरार रखने के लिए लोन लेना पड़े तो वो हुकूमत ने बहुत सस्ते दामों पे आपको दिए, और इसी तरह के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल किए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इनकी फाइनेंस टीम और इनकी जो एहसास प्रोग्राम की लीडरशिप, उन सबको दुनिया में सराहा जा रहा है। मजीद आपको बताएं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अहदाफ हासिल करने का अमल तेज करते हुए मुल्क भर में मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला किया गया है। इस मकसद के लिए टैक्स इंटेलिजेंस हुकाम को खसूसी टास्क दे दिया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अहदाफ के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए खसूसी एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। टैक्स हुक्काम को खसूसी कार्रवाइयों की हिदायत भी दी है और साथ साथ FBI की खुफिया विंग को भी मुतहर्रिक कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग की मजमूई रकम के हिसाब से जुर्मानों के साथ साथ मुजरिमान को 5 से 10 साल तक कैद की सजा होगी। इनकम टैक्स और कस्टम इंटेलिजेंस विंग अपनी अपनी हदूद में मनी लॉन्ड्रिंग रोकेंगे। इस मकसद के लिए तमाम बंदरगाहों, हवाई अड्डों पर खुसूसी इंतजामात भी किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अहदाफ के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। टैक्स हुक्काम को खुसूसी कार्रवाइयों की हिदायत भी जारी कर दी गई है। साथ साथ FBI की खुफिया विंग को भी मुतहर्रिक कर दिया गया है। आपको बताएं कि कराची के इलाके सिविल लाइन की कच्ची आबादी हिजरत कॉलोनी में आतिशज़दगी के एक वाक़े में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कराची के हिजरत कॉलोनी में एक दुकान में आग लगी थी, जो आग बुझाने वाले अमले की पहुंचने से पहले फैल गई और बलाई मंजिल पर घर को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी के नतीजे में दम घुटने और झुलसने से 2 ख़वातीन और एक बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज ये तीनों दम तोड़ गईं। जाँ बहक ख़वातीन की शनाख्त इशरत बीबी और वसीला के नाम से हुई, जबकि बच्ची को आयशा बीबी के नाम से शनाख्त किया गया। इमदादी काम के दौरान इमारत से एक नौजवान शहरियार की झुलसी हुई लाश भी निकाली गई। जाँ बहक होने वाले 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जाता है, जो पहली मंजिल पर रिहाइश पजीर थे। मजीद जानते हैं कराची से ब्यूरो चीफ टीवी टुडे के मलिक मुनव्वर हुसैन। मलिक मुनव्वर हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज अफसोसनाक वाकया कराची के इलाके हिजरत कॉलोनी में पेश है, तो जहाँ पर एक बिल्डिंग में आग लग गई थी। ये 2 मंजिला बिल्डिंग की नीचे दुकानें बनी हुई हैं। पहली मंजिल पर ये आग लगी थी और ऊपर जो फैमिली रह रही थी वो इस आग में फंस गई, तो अपने आप को ना बचा पाए, आग की लपेट में आ गए। और 3 इसमें 2 लेडीज हैं और एक बच्ची है, जबकि एक नौजवान है शहरयार। एक खातून का नाम जो है बीबी और एक बच्ची उनके साथ थी, ये उसमें आग में झुलस गए थे और जान बहक हो गए। जबकि इसमें 4 और मजीद जो है वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जहाँ बहक होने वालों का ताल्लुक है एक ही खानदान से है और यहाँ पर ये रहायश पजीर थे। तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो ताखीर से पहुंची, जिस वजह से आग पर जो है फौरी तौर पर बाबा काबू ना पाया जा सका। तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ ने आग बुझा ली, आग पर काबू पा लिया गया है। मजीद अभी भी वहाँ पर जो मकीन है वहाँ जमा है और इस वाक़े के हवाले से जो हमारे अफसोस की जो सजा है वो कहना है। जी बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि 4 दिन गुजरने के बाद भी खातून से ज्यादती के मुलजिम गिरफ्त में न आ सके। क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले 70 से ज्यादा अफराद की सख्त निगरानी कर ली गई है। ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून के रिश्तेदार और मुकदमे के मुद्दई को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले 70 से ज्यादा अफराद की सख्त निगरानी भी की जा रही है। करोल घाटी के रिहायशियों का DNA भी किया जाएगा। वजीर आला पंजाब की कायम करदा कमेटी ने जाए वक़वा का मुआयना किया। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत, IG पंजाब इनाम गनी भी जाए वक़वा पहुंचे। उनका कहना था कि ये वाकया तफ्तीश को जदीद साइंसी खतूत पर आगे बढ़ाया जा रहा है। मुल्जिमान जल्द कानून के कटघरे में होंगे।
اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے متعلق. آپ کو بتائیں کہ جائے وقفہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قائم کردہ کمیٹی نے جائے وقفہ کا معائنہ کیا. وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت، آئی جی پنجاب انعام غنی بھی جائے وقفہ پہنچے. ان کا کہنا تھا کہ واقعے کی تفتیش کو جدید سائنسی خطوط پر آگے بڑھایا جا رہا ہے. ملزمان جلد قانون کے کٹہرے میں ہوں گے. آپ کو بتائیں کہ لاہور موٹر وے پر زیادتی کا نشانہ بننے والی خاتون نے پولیس کو بیان ریکارڈ کرانے سے معذرت کر لی. پولیس نے متاثرہ خاتون سے بیان ریکارڈ کرانے کے لیے رابطہ کیا، تاہم خاتون کے اہل خانہ نے فی الوقت بیان ریکارڈ کرانے سے معذرت کر لی. خاتون کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ خاتون کی حالت ایسی نہیں کہ وہ بیان ریکارڈ کرا سکیں. خاتون نے کہ اہل خانہ کے انکار کے بعد پولیس تاحال متاثرہ خاتون کا بیان حاصل نہیں کر سکی ہے. فوکل پرسن ایس ایس پی ذیشان اصغر کا کہنا ہے کہ خاتون کی حالت کو سمجھ سکتے ہیں. متاثرہ خاتون کا بیان اس وقت قلم بند کریں گے جب ان کے لیے ممکن ہوگا. پوری قوم موٹر وے واقعے پر افسردہ ہے. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ملک میں ہر جگہ مافیا سرگرم ہے، حکومت کی پالیسی کہاں ہے. موٹر وے زیادتی کیس میں ملزموں کو شک کا فائدہ دے کر رہا کرنے کے امکانات بھی پیدا کر دیے گئے ہیں. کہا نیب حکومت نے اپنے انتقام کے لیے استعمال میں رکھا ہے. پورے فیصل آباد سے ان کی جائیداد کے حوالے سے تفتیش کی گئی. ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ قانون کی عملداری نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ موٹر ویز کے اوپر موٹر ویز جو ہیں ان کو وہ مکمل ہیں، ان کے اوپر لوگ سفر بھی کر رہے ہیں، ان کو کھولنا پڑا ہے، لیکن ان کو مکمل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ صرف اس لیے کہ جب ان کو مکمل کرتے ہیں، لوگ اس کو سفر کرتے ہیں، وہ میاں نواز شریف کو دعائیں دیتے ہیں، وہ شکریہ میاں نواز شریف کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں جو ایسٹرن بائی پاس ہے، یہ ایسٹرن بائی پاس جو موٹر وے کا حصہ ہے، اسے 6 ماہ ہو گئے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس کے اوپر لوگ سفر کر رہے ہیں. اسے کیوں موٹر وے کے حوالے نہیں کیا گیا؟ اس کے اوپر کیوں جو ہے وہ سیکورٹی کا واچ اینڈ وارڈ کا جو ہے وہ انتظام نہیں کیا گیا؟ اب یہ بھی جو ہے وہ میاں نواز شریف کا قصور ہے، یہ بھی جو ہے وہ پچھلی حکومت کا جو قصور ہے، اسے بھی پچھلی حکومت کے اوپر ڈال دیں. اسے بھی جو ہے میاں شہباز شریف پہ ڈال دیں کہ جی نہ وہ ایسٹرن بائی پاس بناتے، نہ خاتون گاڑی لے کے وہاں پہ جاتی، اور نہ یہ واقعہ ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ سی سی پی او کو آپ جو ہے یہ بیان دینا چاہیے اور اس کے متعلق جو ہے وہ کوئی مقدمہ درج کرنا چاہیے. جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے. پوری سول سوسائٹی جو ہے وہ اس کی مذمت کر رہی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے دعویٰ کیا ہے کہ چند گھنٹوں میں موٹر وے زیادتی کیس منطقی انجام تک پہنچا دیں گے. کہا محکمہ داخلہ، پولیس، فورینزک سائنس ایجنسی سمیت تمام ادارے گزشتہ 2 دن سے تحقیقات میں مصروف ہیں. درندہ صرف شیطان مجرمان جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے. میڈیا اور حکومتی ترجمانوں سے گزارش ہے کہ غلط معلومات کی ترسیل سے اجتناب کریں. موٹر وے زیادتی کیس کے حوالے سے اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت اور ہوم منسٹری، ہوم ڈپارٹمنٹ، پنجاب پولیس، آئی جی پنجاب اور لاہور پولیس اور فورینزک سائنس ایجنسی بڑی محنت کر کے پچھلے 3-4 دنوں سے دن رات ایک کر کے 28 سے زائد ٹیمیں بنا کر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر مجھے امید ہے کہ ہم اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور وہ درندہ صرف اور شیطان صرف ملزم جو ہے وہ گرفتار ہوں گے اور قانون کے ذریعے سے نشانے حکمت بنیں گے. لیکن میری اس موقع پہ گزارش ہے، ایک میڈیا سے اور دوسرا ہمارے پی ٹی آئی کے کچھ ہمارے جو قائدین ہیں، جو ہمارے میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی کے ممبرس ہیں، ان دونوں سے پہلی میری میڈیا سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اگر آپ نے کوئی انفارمیشن لینی ہے تو 4 اتھینٹک سورسز ہیں. ایک 4 پہلا آپ کا سورس ہے سی ایم صاحب کا اپنا بیان، سی ایم صاحب کی طرف سے اپنی اسٹیٹمنٹ یا ان کے سیکریٹریٹ کی طرف سے بیان. دوسرا ہے انفارمیشن منسٹر، کہ انفارمیشن منسٹر کی طرف سے میری طرف سے آپ کو کوئی کسی قسم کی انفارمیشن آتی ہے. تیسرا ہے لا منسٹر، آپ کو راجہ بشارت صاحب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی یا ان کا کوئی بیان آئے تو وہ ایک اتھینٹک آپ کی خبر ہوگی. چوتھا ہمارا ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، ہوم سیکرٹری مومن آغا صاحب کے آفس سے اگر آپ کو کوئی خبر آتی ہے یا آپ کا آئی جی پنجاب ہے کہ ان کی طرف سے. لیکن جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق ہم نے طے سیکریٹریٹ کو انفارم کر کے پھر اس کے ذریعے سے جس طرح بھی ہم اس کو جو لیٹسٹ نیوز ہوگی وہ پبلک تک
मीडिया के जरिए से जो है हम पहुंचाएंगे। तो मेरी मीडिया के दोस्तों से गुजारिश है, जिस तरह रात को खबर चली कि मर्ची मंजर गिरफ्तार हो गया। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं साल के आखिर तक नून और शीन लीग अलग होंगे। नून लीग पत्थर मारने वाली और शीन लीग संग तराश जमात होगी। लाहौर में हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना था कि पाकिस्तान रेलवे ने कराची को मिनी हेडक्वार्टर्स बनाने का भी फैसला किया है। रेलवे की आमदन में इजाफे के लिए मालगाड़ियों में इजाफा करेंगे। हमने फैसला किया है कि ठेकेदारों को पैसे देने की बजाय पेंशन वालों को पैसे दिए जाएं। साना मोटरवे केस पर बात करते हुए शेख रशीद का कहना था कि गुज्जरपुरा वाकया हम सब के लिए बायसे नदामत है। उम्मीद है मोटरवे पर होने वाली ज्यादती के मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाएगा। सीसीपीओ ने जो बयान दिया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है और बगैर सोचे समझे दिया है। सारे लोग मीडिया के काबिल नहीं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि असद उमर को सीसीपीओ से ना मिलाएं, वो समझदार आदमी हैं। विफाक और सिंध में अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, ये अच्छी बात है। वजीर रेलवे ने कहा कि लंदन बगोड़ों और इश्तहारियों की आमा जगह बन चुका है। अदालत को जितने भी लोग मतलूब हैं वो लंदन भागे हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि इस साल के आखिर तक नून और शीन लीग अलग होंगे। नवाज शरीफ जैसे लोगों के लिए ये अफसोसनाक होगा। ये वोट को इज्जत क्यों नहीं दे रहे? अब तो अदालतें कह रही हैं जो अस्पताल में नहीं वो कैसा बीमार है। शहबाज शरीफ ने वापस आकर गलती की, अब पछता रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे ये मालूम नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि आटे और चीनी का मामला मिस हैंडल किया, हम खुद जिम्मेदार हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पसमंदा तबके की फलाह हुकूमत की अहम तरजीह है। कहा एहसास कफालत प्रोग्राम शफाफियत पर मबनी मंसूबा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत आवाम को सहूलियात की फरहमी के लिए कोशा है। एहसास कफालत प्रोग्राम शफाफियत पर मबनी मनसूबा है। उन्होंने कहा कि नई ज़िंदगी मनसूबा तेज़ाब गर्दे से मुतासरा अफराद के लिए बेहतरीन प्रोग्राम है, जिसमें तेज़ाब से मुतासरा अफराद की कफालत की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी और मुतासरा अफराद के रोज़गार के लिए बिलासूद कर्जे भी दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पसमानदा तबके की फलाह हुकूमत की अहम तरजीह है और नई ज़िंदगी प्रोग्राम के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान नेवी सेलिंग क्लब केस में रिमार्क्स दिए हैं कि पाक बहरिया का काम मुल्क का दिफा है। क्लब बनाने का काम कानून में कहाँ लिखा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रावल झील के किनारे पाकिस्तानी नेवी सेलिंग क्लब की तामीर के खिलाफ केस की समाअत हुई। नेवल चीफ की जानिब से वकील इश्तरा औसाफ पेश हुए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अथर मिनुल्लाह ने पूछा कि नेवी का काम मुल्क का दिफा करना है, नेवी का ये सेलिंग या क्लब बनाने का रोल कहाँ है? कानून में बताएं कि कहाँ लिखा है कि वकील इश्तरा ओ इंसाफ ने कहा है कि डिफेंस के लिए ट्रेनिंग से मुतल्लिका तमाम चीजें आई हैं, जिनमें स्पोर्ट्स भी है। रियासत पाकिस्तान आर्मर्ड फोर्सेस को भी इसकी एक्टिविटी को तस्लीम करना होगा क्योंकि ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। अदालत ने कहा कि जिस विफाकी हुकूमत के आप मातहत हैं, इसके किस अफसर ने कहा कि आपको इजाजत दी? कोई बिल्डिंग प्लान, कोई मंजूरी, कुछ नहीं था और आप इसका इफ्तिताह करने चले गए। पाकिस्तान नेवल फॉर्म्स के वकील मलिक कमर अफजल ने दलाइल में कहा कि नेवल फॉर्म्स का नेवी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि नेवी के ऑफिसर्स ये स्कीम चला रहे हैं। अदालत ने पूछा है कि क्या नेवी नाम इस्तेमाल करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की? इस स्कीम को चलाने का ये नेवी के पास क्या कानूनी अथॉरिटी है कि वो काम कर सकते हैं? कानून की खिलाफ वर्जी करके ये इस वर्दी की इज्जत दांव पर लगा रहे हैं। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में एएसआई ने मुबैना तौर पर थाने के अंदर गोली मारकर जिंदगी खत्म कर ली। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में एएसआई ने थाने के अंदर गोली मारकर जिंदगी खत्म कर ली। 54 साला एएसआई मजीद गुज्जर मामूल के मुताबिक ड्यूटी पर आया था। पुलिस के मुताबिक वो लाहौर खाना के इलाके सेंट्रल पार्क बद्दो की गांव का रिहायशी था और इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात था। अब्दुल मजीद ने अपने पिस्टल से खुद को सर में गोली मारी। पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी की लाश तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी।
आपको बताएं, लाहौर के इलाके नवाकोट में सौतेली मां को कत्ल करने वाले 2 भाई अपनी मां समेत गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमों के वालिद ने 2 शादियां की, जिसका बेटियों को गम था। सौतेली मां शकीला को कत्ल करने वाले 2 सगे भाई अपनी मां समेत गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमों में मुलजिम काशिफ, उसका सगा भाई आसिफ शामिल है। मुलजिमों के वालिद अब्दुल रशीद ने 2 शादियां कर रखी थी, जिसका उन्हें रंज था। मुलजिमों ने करीबन 1 माह कबल रक्शे में बैठी अपनी सौतेली मां पर फायरिंग कर दी थी। फायरिंग से सौतेली मां शकीला जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गई थी। कत्ल की वारदात के बाद मुलजिमान काशिफ और आसिफ अपनी सगी मां समेत मौके से फरार हो गए थे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवाकोट कमर साजिद ने अपनी टीम के हमरा मुलजिमान को गिरफ्तार करके आलाए कत्ल बरामद कर लिया। खबरें और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। आप हमारे ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला खैबर में फुटबॉल मैच में तकरार के नतीजे में होने वाली फायरिंग से कौमी टीम के फुटबॉलर समेत कम अज कम 2 खिलाड़ी जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। जिला खैबर में फुटबॉल ग्राउंड में हार जीत आपको बताते चलें। अहम खबर से जिला खैबर में फुटबॉल ग्राउंड में हार जीत के मामले पर शुरू होने वाली तकरार बड़े हादसे का सबब बन गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जमरूद के इलाके टीटी बाजार में पेश आया, जिसकी FIR दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। पुलिस ने जांबाग होने वालों की शनाख्त जुनेद खान और कलीमुल्ला से की है और ये दोनों टीटी बाजार के रिहायशी और फुटबॉल के खिलाड़ी थे। पुलिस के मुताबिक वाकया जुनेद और कलीमुल्ला के भाइयों के लड़ाई की वजह से पेश आया। आपको बताएं कि पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। जुनेद के खानदान ने वाकये की FIR भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 3 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,373 हो गई। मजीद 534 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,09,055 हो गए। 534 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,88,536 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 3 मरीजों की जिंदगियां निगल ली हैं। सिंध में 2,440, पंजाब में आपको बता रहे हैं कि 2,215, खैबर पख्तूनख्वा में 1,256, बलूचिस्तान में 145, गिलगित बल्तिस्तान में 74, आज़ाद कश्मीर में 65 और इस्लामाबाद में 178 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 584 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 97,602, सिंध में 1,31,675, खैबर पख्तूनख्वा में 36,862 और इस्लामाबाद में 15,862 बात हो चुकी। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,86,00,000 हो गई। हलाकतें 9,19,000 हो गई। 2,05,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। आपको बताएं कि मूजी कोरोना वायरस पर काबू में ना आ सका। अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना वार जारी हैं। अमेरिका में 1,97,421, ब्राजील में 1,30,474, मैक्सिको में 70,183, रूस में 18,365, भारत में 77,506,
तुर्की में 6,951, ईरान में 22,913, अफगानिस्तान में 1,420 और सऊदी अरब में 6,373 अमवात हो चुकी हैं। मनशियात बरामदगी केस में नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी, जज के रुखसत होने के बायस अदालती कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। मुनशियात बरामदगी केस में नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इंसदाद मुनशियात की खुसूसी अदालत ने जज शाकिर हसन ने केस की समाअत करना थी, लेकिन वो रुखसत पर थे। साबिक सूबाई वजीर कानून पर 15 किलोग्राम मुनशियात स्मगल करने का इल्जाम भी है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई जाने वाले मुसाफिर तौकीर खान से दौरान चेकिंग ANF डायरेक्टोरेट नॉर्थ के अमले ने 630 ग्राम आइस बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का ताल्लुक सवाबी से है। मनशियात मिठाई के डब्बे में छुपाई गई, जो ANF ने बरामद कर ली। मनशियात की आलमी मार्केट में मालियत करोड़ों रुपए बताई जाती है। इस हवाले से ANF ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने गवादर और माड़ा में पाक बहरिया की तनसीबात का दौरा किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कमांडर कोस्ट वाइस एडमिरल फैसल रसूल लोधी ने गवादर आमद पर नेवल चीफ का इस्तकबाल किया। नेवल चीफ कहते हैं कि पाक बहरिया कौमी बहरी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएगी। तफसीलात के मुताबिक नेवल चीफ ने गवादर में मिंजर ट्रेनिंग सेंटर के सेटअप का इफ्तिताह किया और तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तान और दोस्त मुमालिक के दरमियान भी किया गया है। खबरें और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक।